Assalamu alaikum, dear students. Students, first of all, let me tell you that the syllabus, as you all know, that we have to do with the chapters which we have completed. You are having the chapters in your pre-midterm, midterm, and this is your post-midterm. So, dear students, from pre-midterm and midterm, the 30% syllabus means there will be 30% marks for your midterm and pre-midterm. For post-midterm, the chapter which we have done recently will be carrying the 70 percentage. Okay, so 70-30 percentage is about your exam schedule. And dear students, let me tell you a very important thing. 5 marks objectives will be there, and then you are having 2 marks questions, 3 marks questions, and 5 marks question. This is the paper style. Okay, now let me tell you that we have to do with the exercise. Okay, exercise of your lesson number 3. So in exercise we are going to complete today from question number 1 to 6. And let me tell you, in your exam also you will be getting the questions from, means you will be getting the same type of the pattern question. I mean, not the same questions, the digits may be changed, the values may be changed. Okay, so the basis of these questions would be there for your exam, that is your this the recent exam which will be held over here. So dear students, first of all, let us see the exercise question number 1. Dear students, if 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram if boron and 0.144 gram of oxygen, calculate the percentage composition of the compound by weight. So dear student, in this what you have to do, first of all, mass of the boron is 0.0696. Okay, then mass of the oxygen is 0.144 gram. This is also given. Now dear students, mass of the sample is 0.24 gram. Okay, so this is already given. Now thus the percentage of the boron, how we will get the percentage of the boron? Percentage of the boron, that is 0.096 multiplied by 100 divided by 0.24. So you are getting 40 percentage. You are getting 40 percentage of the boron. Okay, now once we know the mass of the boron, dear students, let me tell you, if we are knowing the mass of the boron, we can find out the mass of the oxygen also. हम इसको 100 में से माइनस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमें ऑलरेडी वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 0.144 grams of oxygen. So that is given. Again, what we can do, 0.144 multiplied by 100 divided by 0.24. So this is the mass of your oxygen, which is coming 60. So total it is going to make 100%. So dear student, this is a particular numerical based over here, and you can also find out the different kind of the masses over here. Next, let us see with question number 2. When 3 gram, that is 3.0, okay, 3 gram of the carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of the chemical combinations will govern your answer? So dear student, first of all, carbon whenever react with oxygen, it forms carbon dioxide. ठीक है, carbon when combined with oxygen, it forms carbon dioxide. Now see, 3 gram of carbon reacts with 8 gram of oxygen to produce 11 gram of carbon dioxide. Okay, if 3 gram of carbon is burnt in 50 gram, then 3 gram of carbon will react with 8 gram of oxygen. Remaining 42 gram of oxygen will be left unreacted. In this case also 11 gram of carbon dioxide will be formed. The above answer is governing by the law of constant proportion. डियर स्टूडेंट, कॉमन सेंस की बात है कि सपोज कर लो आपके पास एक कार्बन है जो 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. ठीक है, तो एक कार्बन जो है आपका 3 ग्राम का है. ठीक है, इज इट क्लियर? एंड आपका ऑक्सीजन
O2 that is your 8 ग्राम. ठीक है, तो you know that one carbon is able to combine with O2 oxygen which is 8 ग्राम over here. तो 3 ग्राम अगर 8 ग्राम के साथ कंबाइन हो के 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो आपको ये आपको ये समझ जाना चाहिए कि 3 ग्राम कार्बन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन इनफ है. उससे ज़्यादा भी अगर प्रोवाइड करोगे तो वो कितना लेगा, 8 ग्राम ही लेगा. सपोज कर लीजिए कि आपको 10 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है, तो 10 में से अगर आपको यूज़ करना है 3 ग्राम कार्बन के लिए, तो हमेशा 8 ग्राम ही यूज़ होगा, मतलब बाकी के 2 ग्राम्स बचे रहेंगे. इट विल बी रिमेन अनरिएक्टेड, अनयूजफुल, इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे. गेटिंग? सेम हैपन्स ओवर हियर. आपको बोला गया है कि 3 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. हमें 50 ग्राम दिया है, बट 50 ग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया. हमें तो 50 में से कितना चाहिए, ओनली 8 ग्राम. वाई? बिकॉज अवर कार्बन इज ओनली 3 ग्राम, और 3 ग्राम कार्बन सिर्फ 8 ग्राम कार्बन के ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन हो सकता है, और 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ये फिक्स हो गया. ठीक है, you are able to see that 8 plus 3 11, 8 plus 3 11, it is giving you the constant proportion, and that is why we say that this is applying the law of the constant proportion. So I hope, dear student, this is clear to you. Let us see with the next numerical. And dear student, your next numerical, we can say next question over here for your exercise is, what are polyatomic ions? Give example. So dear students, a polyatomic ion is a group of atom carrying a charge. या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है. So here you are able to see ammonium ion, that is NH4 plus, hydroxide ion, that is OH minus, carbonate ion, that is CO3 2 चार्ज लगा हुआ है 2 माइनस. सल्फेट आयन, सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट आएगा, इट इज़ सल्फोनेट ऐसे कुछ लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉट करेक्ट. सल्फेट आयन, दैट इज़ SO4 2 माइनस. सो डियर स्टूडेंट, पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग द चार्ज, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, देखो अगर एक एटम है जैसे कि Cl माइनस, तो एक एटम हुआ, एक एटम के ऊपर चार्ज माइनस का, मतलब वो कैसा हुआ, एनायन. ठीक है, इट इज़ एनायन. सोडियम Na प्लस के ऊपर चार्ज लगा हुआ है प्लस. ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज, बट कैसा है, एक ही आयन है ना, तो वी कॉल इट एज ए मोनो एटोमिक आयन. वी कॉल इट एज ए मोनो एटोमिक हुआ. डाई एटोमिक का एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ डाई एटोमिक? सो डियर स्टूडेंट, डाई एटोमिक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है OH माइनस आयन. OH माइनस आयन इज अ डाई एटोमिक. ओके, बट यहाँ पे देखो एमोनियम में क्या हो रहा है, 1 नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन, पूरे 5 पार्टिकल्स हो गए, पूरे 5 एटम्स हो गए, तो वी कैन कॉल इट एज अ पॉली एटॉमिक. वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट में देखो एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, मतलब के टोटल 4 पार्टिकल्स हुए. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ पॉली एटॉमिक ion. So dear student, this is all about the groups of the atom together, and they are called as a polyatomic ion. Hope it is clear to you. Dear student, very important question over here, that is question number 4. Write the chemical formula of the following. Very important. Why it is very important? Because in exam you may be given with the name and you have to draw the structure, means you have to write down their formula. Okay, structure means not that structure, here I'm talking about the formula. So for example, magnesium chloride. So magnesium chloride, Mg की वैलेंसी कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? Mg की वैलेंसी होती है +2. क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1. So chlorine valency is -1 and Mg is having +2. So when you do the crisscross method, dear students, you are knowing that on doing the crisscross method, you will be able to see that there should be 2 chlorine. अच्छा, मैग्नीशियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन. क्यों 2 क्लोरीन? मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल 2 क्लोरीन को जाना पड़ेगा. ओके, सिमिलरली सेकंड इज
कैल्शियम ऑक्साइड. सो डियर स्टूडेंट, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2. तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO. ओके. कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1. सो इफ़ यू वांट टू लूज द 2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास नाइट्रेट कितने होने चाहिए, 2 नाइट्रेट्स. दैट इज वाई द फॉर्मूला इज CuNO3 ट्वाइस. CuNO3 ट्वाइस. एमोनियम क्लोराइड, डियर स्टूडेंट, एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1. सो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट क्लोरीन तो एक ही ले सकता है. तो एक क्लोरीन अगर एक लेगा तो बाकी के 2 क्लोरीन भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर टोटल क्या बन जाएगा, AlCl3, विच इज कॉल्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड. लास्ट यू आर हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो डियर स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट इज ओवर हियर. कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, कार्बोनेट की वैलेंसी भी होती है 2. अगर आपने पहले एग्जाम्पल आंसर नंबर 3 में देखा, कार्बोनेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, -2. कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2. तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, CaCO3. CaCO3 इज योर कंपाउंड फॉर्मेशन ओवर हियर. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5, you are able to see, give the name of the element present in the following compound. So dear students, what we need to do, quicklime. quicklime का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO. तो आपको क्या क्या दिख रहा है, Ca मतलब कैल्शियम एंड O मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट ओवर देयर. एग्जाम्पल नंबर 2, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. तो इट इज़ वेरी इजी, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. ओके. तो एलिमेंट कौन से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, BROMINE, ब्रोमीन. डियर स्टूडेंट्स, को ब्रोमीन भी बुलाते हैं, ब्रोमाइन भी बुलाते हैं. इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस ओवर देयर, यू कैन प्रोनाउंस इट एनी लाइक दिस. ओके. बेकिंग पाउडर, डियर स्टूडेंट, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3. ठीक है. इसका एक और नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नेम की बात कर रही हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके. अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऑल्सो कॉल इट सोडियम बाइकार्बोनेट. तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन और O मतलब ऑक्सीजन. मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. ओके. लास्ट एग्जाम्पल विच इज आस्क्ड ओवर हियर, दैट इज पोटेशियम सल्फेट. K2SO4. ओके. सो आपके पास K मतलब पोटेशियम है, S मतलब सल्फर है एंड O मतलब ऑक्सीजन है. मतलब टोटल आपके पास कितने एलिमेंट हो गए, इसमें 3 एलिमेंट्स हो गए. इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Okay, and here we are going with the last question for today, which is very important again. आपको एग्जाम में नेम गिवन हो सकता है या तो फॉर्मूला गिवन हो सकता है और आपको फाइंड करना है उसका मोलर मास. डियर स्टूडेंट, ये मोलर मास इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी पढ़ेंगे और आप 11-12 तक इसको यूज़ करेंगे. 11-12 क्या, आगे अगर कॉलेज में भी आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले रहे हो तो वहाँ पे भी आपको यूज़फुल है. दैट हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास. डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1, इथाइन का फॉर्मूला है C2H2. ठीक है. 2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का एटॉमिक नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर. ओके. एटॉमिक नंबर मतलब मास की बात कर रही हूँ, सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास. ओके. सो कार्बन 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 into 12, that is 24. 24 plus 2, it will be 26. So dear student, please make a correction over here. It is 26 actually. Okay. 2 carbons, that is you can see to it. आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है वो क्लियरली पता चल रहा है कि 2 into 12 that is 24 प्लस 2 into 1 का हाइड्रोजन का मास होता है 1 एंड टोटल कितने हाइड्रोजन है 2. सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 26. ओके. सल्फर, डियर स्टूडेंट, एक सल्फर का मास होता है 32. तो टोटल 8 सल्फर है, तो 8 into 32 यू आर गेटिंग 256 ग्राम. ओके. सो दिस इज द मोलर मास. P4, 4 टाइम्स फॉस्फोरस, 4 into P का मास होता है, फॉस्फोरस का मास होता है, एक फॉस्फोरस का 31. तो 4 का कितना होगा 124 ग्राम. ओके. थर्ड वन इज
HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5. सो यू विल बी गेटिंग HCl का मास एज 36.5 ग्राम. ओके, लास्ट एग्जाम्पल इज नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3. सो इन HNO3 दैट इज 1 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का मास होता है 14, 3 कितने ऑक्सीजन से आपके 3. ओके, 3 मल्टीप्लाई बाई 16, क्योंकि 16 होता है एक ऑक्सीजन का मास. Is it clear? So when you add this particular, you will be getting the answer as 63. So dear student, this is very very important over here to understand that how do we find out the molar mass. So dear student, this is the example of these are the few examples, and what is very important, do you know, you need to know the formula. आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या मतलब होता है HCl. अगर आपको यही नहीं पता कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, तो आप उसका मास फाइंड आउट नहीं कर सकते. जैसे नाइट्रिक एसिड, तो आपको ये पता होना चाहिए इट इज़ HNO3. इफ़ यू डोंट नो इट इज़ HNO3, हाउ यू विल एबल टू फाइंड आउट द मास. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. So I hope, dear student, the topics are clear over here, and still if you are facing any difficulty, any doubt, just let me know and we'll clarify your doubts.